नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोगों को किसी के बहकावे में न आकर भाजपा चयन करना चाहिए, मंत्री भगवंत हुबा ने कहा। बीदर उत्तर से आजाद उम्मीदवार शशि पाटिल ने आज प्रचार के लिए रैली निकाली। भाजपा ने चुनाव आयोग का रुख किया। कर्नाटक की संप्रभुता टिप्पणी पर कांग्रेस सोनिया गांधी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की। मंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ता पर हमला करने के आरोप में एसडीपीआई कार्यकर्ता गिरफ्तार। राहुल गांधी डिलीवरी एजेंट के साथ सवारी करते हैं, गिग वर्कर्स के साथ मसाला डोसा शेयर करते हैं। दिल्ली में पहलवानों का धरना 16वें दिन भी जारी, जंतर मंतर पर समर्थन में पहुंच रहे किसान। नए प्रकार का आतंकवाद जो बिना गोला बारूद का द केरल स्टोरी देखने के बाद बोले जेपी नड्डा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। राज्य और बीदर के विकास के लिए भाजपा को मजबूत करने का आग्रह केंद्रीय मंत्री भगवंत हुबा ने कहा। वह आज सुबह शहर में भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने अनुरोध किया कि लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आकर विकास के लिए भाजपा का चयन करना चाहिए। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष शिवानंद मंठालकर, बाबूवाली, गुरुनाथ कल्लूर सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಚಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 9 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಾವೇಶಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶ, ಮೀನುಗಾರರ ಸಮಾವೇಶ, ಅನೇಕ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೃಹತ್ವಾಗಿ ರೋಡ್ ಶೋಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಜನ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸರಳತೆಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಾದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಡ್ಡಾಜಿಯವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮತದಾರರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು, ಕಳೆದ 3.25 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಾಧನೆಗಳು, ಬಡವರಿಗೆ, ದೀನರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಭವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದೆ.
ದಯಮಾಡಿ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರು ತಾವುಗಳು ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಣಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बीदर उत्तर से आजाद उम्मीदवार शशि पाटिल ने आज प्रचार के अंतिम दिन बीदर शहर के अंबेडकर चौक से एक रैली निकालकर शहर के पुराने क्षेत्र के चौबारा, गावन चौक, शाहगंज सहित अन्य मुख्य चौराहों और क्षेत्रों से गुजरते हुए लोगों से समर्थन की अपील की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಅಡತ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಮತಯಾಚನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪಾದಯಾತ್ರಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾಗಂಜ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಗಣೇಶ್, ಗವಾನ್ ಚೌಕ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ್, ಚೌಬಾರ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಭೀ ನನ್ನ ಜನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ರ ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನಿಗ ಪಾದಕ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ನಾರ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ, ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾಕೆ ನೋಡತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಂಡಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚೌಳಿ ಪಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸುಂಟ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟದು. ಯಾಕೆ ಸುಂಟ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದವಳೆ ಭಾಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತಿದು 15 ವರ್ಷ ಶಾಸಕ ನಮ್ಮ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ರಾಜ ಮಾಡತಾನ. ಬರೀ ಸಮಾಜ್ ಗುಂಗ್ರಾ ಮಾಡಿ ಚೂತ ಮಾಡಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಬೀದರ್ ನಾರ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ 2,23,000 ಮತದಾರ, ಬೇಡ 2,23,000 ಮತದಾರ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು, SC, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಮರಾಠ, ಲಿಂಗಾಯತ್, ಹಜ್ಜಾವರ್, ಕೋಳಿ, ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಜನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಗೌಡ್ರು ತಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಭಾಳ ಜೋರಿ ಅದ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೇ ಉಳಿದವ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಂಗೆ ಉಳಿದದ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ತಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಶಾಸಕರು 2,400 ಮನೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. DC ಅವರು ಇದು ವಿಷಯನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ DC ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಪಾಟೀಲ್ರೇ ಇದು 36 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ. बीदर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कांग्रेस बंडाया अभ्यर्थी सम्मान्य श्री शशि कुमार एस पुलिस पाटिल चौड़ी आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व्रत को लेकर और गवन चौक से पूरा बसवेश्वर व्रत का पूरा पाद यात्रा करके और यहाँ पे जो गांधीगंज है, गांधीगंज में बृहद प्रमाण पे जो मतयाचन का एक लास्ट आखिरी दिन है, पूरे दुकानदारों को, मालिकों को और हमालों को संघ को दे के रिक्वेस्ट करके हमें जो हमारा क्रम संख्या 10 है, सीरियल नंबर 10 है, हमारा चिन्ह जो है ट्रैक्टर है उसको मतदान करके मेरे को
प्रचंड बहुमत एक बीदर नॉर्थ डेवलपमेंट के लिए जीत जरूरी है, उसके लिए हम मतदान के लिए विनती किए हैं और हम बीदर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जीत रहे हैं। धन्यवाद। बीदर उत्तर के उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर ने आज शहर के सपना मल्टीप्लेक्स में द केरल स्टोरी फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। फिल्म देखने के बाद ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। केरला जैसे राज्य में किस प्रकार से लव जिहाद चल रहा है और लगभग 35,000 हिंदू बच्चियों को लव जिहाद में फंसा करके उनका जीवन बर्बाद करके यहाँ से सीरिया, लीबिया और आतंकवादी जहाँ पर पनाह लेते हैं ऐसे देश में भेजने का काम हो रहा है, जिसकी सत्य घटना को, घटी हुई घटना को केरला फाइल्स के माध्यम से, आज केरला स्टोरी के माध्यम से आज भारत की जनता को सत्य घटना को जो बताने का काम आज हुआ है। जिस सिनेमा को देखने से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से लव जिहाद के बाद धर्मांतरण होता है, ये भारत के लिए बहुत घातक है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ उनके बयान पर शिकायत दर्ज कराई कि उनकी पार्टी किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया। शिकायत दर्ज कराने वाली केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस बयान को चौंकाने वाला और अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि गांधी ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। कांग्रेस ने शनिवार को हुबली में एक अभियान रैली में गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता ने 6.5 करोड़ कन्नडिगाओं को एक मजबूत संदेश भेजा है और जनसभा में उनके बोलने की तस्वीरें भी पोस्ट की। कांग्रेस के ट्वीट में लिखा है, कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक कार्यकर्ता को पुलिस ने रविवार रात यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई तब शुरू हुई जब कांग्रेस का एक प्रचार वाहन कोनाजे थाना क्षेत्र के नाटेकल में एसडीपीआई की वाहन रैली के रास्ते में आ गया। एसडीपीआई कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित बाइक और रिक्शा रैली के कारण सड़क पर यातायात बाधित हो गया। कांग्रेस के अभियान वाहन के चालक ने हॉर्न बजाया और एक अभियान गीत बजाया। इससे आक्रोशित एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने वाहन चालक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में घायल हुए नौफल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बाद में एसडीपीआई के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया जो नौफल पर हमला करने वाले समूह का हिस्सा था। सूत्रों ने कहा कि घटना के बाद डेरलाकाटी में एसडीपीआई की बैठक स्थल पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री यूटी खादर मंगलूर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सतीश कुंपाला का सामना कर रहे हैं, जहां रियाज फंगरीपेट एसडीपीआई के उम्मीदवार हैं। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गिग कार्यकर्ताओं तक पार्टी की पहुंच के हिस्से के रूप में ब्लिंकेट डिलीवरी एजेंट के साथ पिछली सीट पर सवार हुए। समाचार एजेंसी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में गांधी नीले हेलमेट पहने डिलीवरी एजेंट के साथ स्कूटर पर बैठने से पहले एक लड़के के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, श्री राहुल गांधी की बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय तक पहुंच समाज के हर वर्ग के मुद्दों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दक्षिण कन्नड़ जिले के मूडबिद्री में कहा कि भ्रष्टाचार, लूटपाट, महंगाई और बेरोजगारी आज कर्नाटक में असली आतंकवाद है और सत्ताधारी भाजपा सत्ता में रहने के दौरान लोगों के वास्तविक मुद्दों को हल करने में विफल रही है। आज वे आप लोगों को वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं भाजपा नेताओं को बताना चाहती हूं कि महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार का 40% भ्रष्टाचार ही असली उग्रवाद है। उन्होंने कहा, धर्म, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद की बात करते हुए भाजपा नेताओं को यह नहीं दिखता कि कर्नाटक में उनके शासन में हजारों किसानों ने आत्महत्या की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 1000 से अधिक बेरोजगार युवाओं ने अपनी जान ले ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अपने शासन के दौरान 6 लाख करोड़ रुपए लूटे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंकों का विलय करके बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विचार को नष्ट कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अब डेयरी सहकारी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी दूध ब्रांड को नष्ट करने की कोशिश कर रही है, जो गुजरात से बाहर स्थित अमूल के साथ विलय कर कर्नाटक के लोगों की सेवा कर रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का आतंकवाद देश पर राज कर रहा है। यहाँ पर रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है
और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना आज भी जारी है। पहलवानों के धरने का आज 16वां दिन है। पहलवानों को समर्थन देने संयुक्त किसान मोर्चा और खाप से जुड़ी लोग भी जंतर मंतर पहुंचे हैं। किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि आज करीब 5,000 किसान जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहलवानों को सलाह देने वाली समिति ने कल ही ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए 15 दिन यानी 21 मई की डेडलाइन दी थी। इस आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इसके पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों ने कल जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने ब्रजभूषण पर कार्यवाही की मांग दोहराई। वहीं ब्रजभूषण ने कहा कि मेरे खिलाफ सबूत मिले तो मैं फांसी लगा लूंगा। जंतर मंतर पर जहां खाने की दुकानें हैं उसके पास पहली बैरिकेडिंग लगाई गई है। जंतर मंतर पर जिस जगह से एंट्री होती है वहां भारी भीड़ आ गई है, जिन्होंने 1-2 बैरिकेड गिरा दिए हैं, लेकिन पुलिस ने तुरंत उन्हें समझाकर आराम से एंट्री कराई, जिसके बाद इन लोगों ने प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया। सभी को बैठाकर पुलिस ने दोबारा बैरिकेडिंग कर दी। इस दौरान कोई झड़प नहीं हुई, बस भीड़ एक एक करके जाने के बजाय बैरिकेड गिराकर अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। द केरल स्टोरी पर चल रहे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को बेंगलुरु में फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुए। बीजेपी नेता ने गरुड़ मॉल में इस फिल्म को देखा। फिल्म देखने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह फिल्म एक नए प्रकार के आतंकवाद को उजागर करती है। उन्होंने कहा, द केरल स्टोरी उस जहरीले आतंकवाद को उजागर करती है जो कि एक नए प्रकार का है, जो बिना गोला बारूद का है। इस तरह के आतंकवाद का किसी राज्य या धर्म से कोई संबंध नहीं है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि ये फिल्म देखकर हमारी जनता समझ पाएगी कि किस तरीके की साजिश हमारे समाज को खोखला करने के लिए
समाज को कमजोर करने के लिए रची जा रही है और हमें इससे आगाह होना चाहिए। इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा था, जो लोग फिल्म द केरल स्टोरी का विरोध कर रहे हैं वे प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और आतंकवादी संगठन ISIS के समर्थक हैं। ठाकुर ने गुरुग्राम में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं वे आतंकवादी समूह PFI के साथ साथ ISIS के एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि द केरल स्टोरी ने उस साजिश का पर्दाफाश किया है जिसमें हिंदू और ईसाई लड़कियों को आतंकवाद के लिए मजबूर किया गया था। बंदूक, पिस्तौल ये आतंकवाद के साथी रहे हैं और इसमें तो आवाज होती है, लेकिन ये जो नए किस्म का आतंकवाद है जिसका बहुत ही भयानक रूप है, इसको द केरला स्टोरी इस साजिश का पर्दाफाश करती है और इसलिए यह भयानक रूप हमको इस द केरला स्टोरी में देखने को मिलता है। हम ये भी ध्यान में लेते हैं कि यह चाहे फिल्म ही हो, लेकिन नए किस्म के आतंकवाद के बारे में यह फिल्म बहुत कुछ बताती है, जिसमें हमारा युवा एक तरीके से प्रायोजित तरीके से उसको आतंकवाद के साए में लाने का प्रयास होता है और उसको टेम्प्ट किया जाता है, उसको प्रेरित किया जाता है कि वो आतंकवाद का साथी बने और बाद में वह उसे धकेल दिया जाता है उस रास्ते पर और वहां से वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाता है। इसलिए केरला स्टोरी अपने आप में इस साजिश का पर्दाफाश करती है और जिसको मैं भी देखने आया हूं और समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरीके के आतंकवाद को देखें, समझें और इसका कोई किसी राज्य से लेना देना नहीं है, इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ये देश और वैश्विक कहानी है जिसको हमको समझना पड़ेगा। केरल में थुवलथीरम तट के निकट पर्यटक नौका दुर्घटना में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। जिले के अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम को नौका डूबने के बाद 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। नौका में 40 से अधिक लोग सवार थे। यह नौका थुवलथीरम तट के निकट तानूर में शाम करीब 7:30 बजे डूब गई थी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और तटरक्षकों की टीम मौके पर पहुंच गई तथा लापता लोगों की तलाश का अभियान जारी है। पुलिस के मुताबिक कई नियम तोड़े गए थे जिसके कारण ये हादसा हुआ। डबल डेकर नाव खचाखच भरी हुई थी। लगभग 40 लोगों ने सवारी के लिए टिकट खरीदे थे, लेकिन कई अन्य बिना खरीदे ही प्रवेश कर गए, जो कि सबसे बड़ी चूक थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रियों को लाइफ जैकेट नहीं दिए गए थे। नाव को सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था, जो पर्यटक नौकाओं के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सूर्यास्त के बाद नाव की सवारी पर प्रतिबंध होता है, लेकिन नियम को भी तोड़ा गया और रविवार की देर शाम यह चल रही थी। पुलिस ने बताया कि नाव के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जो अब लापता है। राज्य सरकार ने सोमवार को 1 दिवसीय शोक की घोषणा की है और सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। केरल सरकार ने पर्यटक नौका हादसा मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने PTI भाषा को बताया कि जिन 22 लोगों के शव बरामद हुए हैं उन सभी की पहचान कर ली गई है। अधिकारी ने कहा, हमने सभी एजेंसियों से मदद का अनुरोध किया है। NDRF और तटरक्षक की टीम पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। हमने नौसेना से भी मदद का अनुरोध किया है। अधिकारी ने कहा कि नौका में वास्तव में कितने लोग सवार थे, अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है। देखते समाचार विदेश के। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के बाद से सार्वजनिक मृत्युदंड देने, कोड़े मारने और पत्थर मारने की सजा के लिए सोमवार को तालिबान की कड़ी आलोचना की गई और देश के शासकों से इस तरह की गतिविधियों को रोकने को कहा गया। इसके जवाब में तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान के कानून इस्लामी नियमों और दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं और बड़ी संख्या में अफगान नागरिक इन नियमों को मानते हैं। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और इस्लामी कानून के बीच टकराव की स्थिति में सरकार इस्लामी कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तालिबान ने करीब 2 साल पहले अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के कुछ ही समय बाद इस तरह की सजा देना शुरू कर दिया था, जबकि उसने 1990 के दशक के अपने कार्यकाल की तुलना में
अधिक उदार नियम अपनाने का वादा किया था। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीने में ही अफगानिस्तान में सार्वजनिक रूप से 274 पुरुषों, 58 महिलाओं और 2 लड़कों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए। एजेंसी की मानवाधिकार प्रमुख फियोना फ्रेजर ने कहा, शारीरिक दंड देना प्रताड़ना के खिलाफ समझौते का उल्लंघन है और इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने मृत्युदंड पर तत्काल पाबंदी की मांग की। टेक्सास के सीमावर्ती शहर ब्राउन्सविले में एक शरणार्थी शिविर के बाहर बस स्टॉप पर खड़े लोगों को एक एसयूवी ने रविवार को बेरहमी से कुचल दिया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हैं। ब्राउन्सविले के पुलिस इंस्पेक्टर मार्टिन सैंडोवल ने बताया कि यह हादसा स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 8:30 पर हुआ। बिशप एंड्रिक सैन पेड्रो ओजानम सेंटर के शरणार्थी निदेशक विक्टर माल्डोनाडो ने बताया कि बस स्टॉप पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी और लोग वहां सड़क किनारे बैठकर बस का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हादसे का शिकार हुए ज्यादातर लोग वेनेजुएला के थे। वहीं इससे पहले एपी की रिपोर्ट के अनुसार टेक्सास के सीमावर्ती शहर ब्राउन्सविले में एक प्रवासी आश्रय के बाहर सिटी बस स्टॉप पर एक वाहन की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत और 6 लोगों के घायल होने की खबर मिली थी। वहीं राइटर्स ने खबर दी है कि रविवार को टेक्सास के ब्राउन्सविले में एक कार के पैदल चलने वालों पर चढ़ने से कम 7 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। आमिर खान हुए मायानगरी से बोर। 58 साल की उम्र में शांति की तलाश में मेडिटेशन कोर्स के लिए पहुंचे नेपाल। अब समाचार खेल जगत की। सनराइजर्स हैदराबाद की जीत पर डेविड वार्नर ने ये क्या कर दिया, सोशल मीडिया पर तहलका। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। गोफर्स ने एनसीएलटी से दिवाला याचिका पर जल्द फैसला देने का अनुरोध किया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोगों को किसी के बहकावे में न आकर भाजपा चयन करना चाहिए, मंत्री भगवंत खुबा ने कहा। बीदर उत्तर से आजाद उम्मीदवार शशि पाटिल ने आज प्रचार के लिए रैली निकाली। भाजपा ने चुनाव आयोग का रुख किया। कर्नाटक की संप्रभुता टिप्पणी पर कांग्रेस सोनिया गांधी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की। मंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ता पर हमला करने के आरोप में एसडीपीआई कार्यकर्ता गिरफ्तार। राहुल गांधी डिलीवरी एजेंट के साथ सवारी करते हैं, गिग वर्कर्स के साथ मसाला डोसा शेयर करते हैं। दिल्ली में पहलवानों का धरना 16वें दिन भी जारी। जंतर मंतर पर समर्थन में पहुंच रहे किसान। नए प्रकार का आतंकवाद जो बिना गोला बारूद का द केरल स्टोरी देखने के बाद बोले जेपी नड्डा। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।